अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे लास्ट टॉपिक में हमने साइकिल स्टार्ट किए थे। मैंने उसमें आपको जो है हमने कार्बन साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को समझ आ गई थी ना कार्बन साइकिल की। अच्छा, अब जो हम नेक्स्ट साइकिल आज स्टार्ट करेंगे डैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। कौन सा? नाइट्रोजन साइकिल। पेज नंबर 120 पे आ जाएं आप लोग। बेटे यहाँ पे हेडिंग दी हुई है नाइट्रोजन साइकिल की, ये देखें यहाँ पे। यहाँ से मैं पहले रीड आउट करूँगी, देन मैं इस पूरे साइकिल को आपको एक्सप्लेन करूँगी। Nitrogen is an important component of many biomolecules like protein and nucleic acid, DNA and RNA. Atmosphere is the reservoir of free gaseous nitrogen. Living organism cannot pick up this gaseous nitrogen directly from the atmosphere except for nitrogen fixing bacteria. It has to be converted into nitrates to be utilized by plants. Nitrogen cycling involves several stages. A. Formation of nitrates. It is done by the following ways. Nitrogen fixation. Conversion of nitrogen gas into nitrate is called nitrogen fixation. इसको आप underline कर लें. It occurs in the following ways. Thunderstorm and lightning convert atmospheric gaseous nitrogen to oxides of nitrogen. These oxides dissolve in water and form nitrous acid and nitric acid. The acid in turn combined with other salt to produce nitrate. It is called atmospheric nitrogen fixation. इसको भी अंडरलाइन कर लें आप. नेक्स्ट पॉइंट आता है, some bacteria also have the ability to transform gaseous nitrogen into nitrate. It is called biological nitrogen fixation. Some of these nitrogen fixing bacteria live as symbionts and many are free living. Nitrogen fixation is also done in industries. In industrial nitrogen fixation, hydrogen is combined with atmospheric nitrogen under high pressure and temperature. It produces ammonia, which is further converted into ammonium nitrate. ये भी आप अंडरलाइन कर लें. इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. नंबर 1 हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ नंबर 2 अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन. अमोनिफिकेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, etc. to ammonia. It is done by ammonifying bacteria. After the formation of ammonia, it is converted into nitrites and nitrate. It is called nitrification and is done by nitrifying bacteria. First, ammonia is converted into nitrites by bacteria. For example, Nitrosomonas. The nitrites are then converted into nitrates by other bacteria. For example, Nitrobacteria. Number B, assimilation. The nitrates formed by the above process are absorbed by plant and are utilized for making proteins, etc. Animals take nitrogenous compound from plant. The utilization of nitrates by organism is called assimilation. Denitrification. It is a biological process in which nitrates and nitrites are reduced to nitrogen gas by denitrifying bacteria. By this process, nitrogen is returned to atmosphere. ये जो बेटे मैंने टॉपिक अभी रीड किया है, दिस इज नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा सारा कार्बन साइकिल से लेंथी भी है और थोड़ा सारा टफ भी है. टफ वैसे नहीं है, लेकिन जब कंपैरिजन हम करें कार्बन साइकिल बहुत सिंपल साइकिल है, तो नाइट्रोजन साइकिल इतना सिंपल नहीं है. इसमें बहुत सारे प्रोसेस बेटे इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले तो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. किसका? बायोमॉलिक्यूल्स. कौन से बायोमॉलिक्यूल्स बेटे? प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड मैंने 2 टाइप्स के आपको बताए थे, एक होते हैं आरएनए और एक होते हैं डीएनए. तो कौन कौन से कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, कौन से बायोमॉलिक्यूल्स की हमने बात की प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. इन दोनों चीज़ों का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कौन? नाइट्रोजन. एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन जो है हमेशा जो है वो अवेलेबल होती है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस गैशियस नाइट्रोजन को पिकअप नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से. क्या? क्योंकि हमें जो है वो नाइट्रोजन इन द गैस फॉर्म रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स जो है वो हमें फॉर्म चाहिए होती है. तो ये जो गैशियस नाइट्रोजन है बेटे, इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्लांट्स या और ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ होते हैं.
तो हम पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक, डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व है नाइट्रोजन साइकिल में ना। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है फ्री फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में जो प्रेजेंट है, अब इसको किस तरह हमने जो है यूज नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है। तो उसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं बेटे, अभी हम उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस। नंबर 1 आपका जो स्टेज होता है, नंबर ए जो है वो आपका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट। पहले आपके क्या बनेंगे, पहले आपके नाइट्रेट बनेंगे। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इन द गैस फॉर्म। क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। लेकिन इस नाइट्रोजन को हमने क्या करना है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना है पहले, ठीक है। नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेन प्रोसेसेस जो है वो यूज होते हैं। कौन से 2, क्या मैंने बात की, 2 प्रोसेस हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा प्रोसेस क्या है, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अब मैं आपको पहला प्रोसेस पढ़ाने लगी हूँ। पहले प्रोसेस का क्या नाम मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना जो होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप अंडरलाइन करें। क्या, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट अकर्स इन फॉलोइंग वेज। ये 2-3 तरीकों से जो है ये प्रोसेस होता है। किन किन से होता है, इसको हम आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटे, एक होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और थर्ड वाली आपकी होती है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने आपको क्या बताया कि एटमॉस्फेयर के अंदर गैशियस नाइट्रोजन जो है बेटे प्रेजेंट होती है जब थंडर स्टॉर्म होता है और लाइटनिंग होती है। थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग का क्या मतलब है, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली का चमकना, और थंडर स्टॉर्म क्या होता है, बादल का गरजना। जब कभी ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसा वेदर होता है कि जब थंडरिंग और लाइटनिंग हो रही हो, तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक गैशियस नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। मैंने क्या वर्ड बोल दिया, नाइट्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। इस ऑक्साइड्स के अंदर अब क्या चीज़ डिजॉल्व हो जाती है, वाटर डिजॉल्व होता है। जब वाटर डिजॉल्व हो जाता है तो क्या बन जाता है, आपके पास 2 चीज़ें बनती हैं, एक है नाइट्रस एसिड और एक है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और ये एसिड दोबारा कंबाइन हो जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट के साथ, क्या बना देते हैं, नाइट्रेट्स बना देते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस एटमॉस्फेयर के अंदर ही हो रहा होता है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दोबारा एक दफ़ा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा पढ़ा देती हूँ, एक दफ़ा गौर से सुनो मेरी बात। मैंने आप लोगों को क्या कहा बेटे, बहुत ईजी है। हम लोग पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एटमॉस्फेरिक है इसका नाम, यानी कि ये एटमॉस्फेयर में हो रही है। एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब आपका वेदर जो है उसमें थंडरिंग हो रही हो या लाइटनिंग हो रही हो, तो क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। किसके ऑक्साइड बन जाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। इन ऑक्साइड में बारिश हो रही है ना, थंडरिंग है, बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, बारिश अगर हो जाती है तो इन ऑक्साइड में वाटर ऐड हो जाता है। जब वाटर ऑक्साइड्स में ऐड हो जाएगा तो आपके पास 2 चीज़ें बन जाएंगी, एक बनेगा नाइट्रस एसिड और एक बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। इन दोनों एसिड में दोबारा ये कंबाइन हो जाएंगे। एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट टाइप के साल्ट्स भी बेटे अवेलेबल होते हैं, उन साल्ट्स में मिक्स होंगे। जब ये साल्ट में मिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रेट बन जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ना, तो दूसरा प्रोसेस आपको होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं बेटे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो गैशियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो हैं ये लिविंग भी होते हैं और ये एज ए सिम्बियोंट भी रहते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, ये बैक्टीरिया जो हैं ये डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं बेटे उनकी रूट्स में जो है ये बैक्टीरिया होते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं।
और मैंने आपको बता दिया ये बैक्टीरिया फ्री भी रहते हैं और ये एज ए सिम्बियोंट भी जो है ये इनकी जो लिविंग है वो एज ए सिम्बियोंट या फ्री लिविंग इनकी होती है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये गैशियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया। थर्ड आपका आता है, और इस तरह की फिक्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो विद इन द इंडस्ट्री होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन हो जाती है नाइट्रोजन के साथ अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। दो चीज़ें लेनी है, क्या टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, प्रेशर भी हाई होना चाहिए। हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ, और क्या बनाएगी, इट प्रोड्यूस अमोनिया। सिंपल रिएक्शन है, नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन। ये तो आप लोगों ने शुरू से रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने। जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है बेटे, अमोनिया बनता है। वही अमोनिया फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनियम नाइट्रेट में। देखो हमारे पास भी नाइट्रेट्स बन गए ना। हमने क्या पढ़ लिया, हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा। नाइट्रोजन फिक्सेशन के आगे फर्दर 3 वेज पढ़ लिए। कौन कौन से, एक एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन पढ़ी हमने, एक हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ ली, और जो मैंने अभी आपको बताई है डैट इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी क्या था, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स हम पढ़े थे। इसके 2 तरीके थे, एक था नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक हो सा इनका अमोनिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन। 2 ही नाम है, इसको अमोनिफिकेशन भी कह सकते हैं, इसको नाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं। ये क्या, इस प्रोसेस में क्या होता है कि बेटे जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जिनकी डेथ हो चुकी है, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, इवन प्लांट्स भी हों, तो क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोटीन है ना बेटे, या नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ना, इनका ब्रेक डाउन होता है। यानी कि ब्रेक डाउन कौन कर रहे हैं, डीकम्पोजर्स ही करते हैं ना ब्रेक डाउन तो डेड ऑर्गेनिक मैटर का। तो डीकम्पोजर जो हैं वो प्रोटीन का जो है वो इसको प्रोटीन को और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को डीकम्पोज कर देते हैं, किसमें, एक नया कंपाउंड बनाते हैं, 2 अमोनिया। और ये प्रोसेस जिसमें डेड ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है अमोनिया में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। आपने इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे आपकी बुक में लिखी हुई, आपने यहीं से याद कर लेनी है, व्हाट इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन नाम से पता चल रहा है कि मेकिंग ऑफ अमोनिया। कैसे, बाय डीकम्पोजर डेड ऑर्गेनिज्म और नाइट्रोजीनियस वे, जो डेड ऑर्गेनिज्म है ना, ये उनको ब्रेक डाउन करते हैं उनके प्रोटीन को और उनको अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कौन करते हैं, इट इज़ डन बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। जिस तरह हमने पहले बैक्टीरिया पढ़े थे ना कि कुछ बैक्टीरिया जिनको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और बैक्टीरिया की भी टाइप है जो कि ये अमोनिफिकेशन का प्रोसेस करती है, उसको हम लोग कहते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अब क्या हुआ, अब अमोनिया बन गया, ठीक है। अब यही अमोनिया आगे फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें, नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें अमोनिया नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है बेटे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और नाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा है, नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस भी बैक्टीरिया ही कर रहे हैं। वो बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। पहले कौन से आए थे, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। पहले क्या होता है, अमोनिया जो हमारा बन गया था वो कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में, और फिर बाद में क्या होता है कि नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट में। वो बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं उनकी कॉमन एग्जांपल क्या है, नाइट्रोसोमोनास। और वो बैक्टीरिया जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं उनकी कॉमन एग्जांपल क्या है, नाइट्रोबैक्टर। क्लियर हो गया। हमने क्या प्रोसेस पढ़ लिए, 2 प्रोसेस पढ़ लिए। एक हमने पढ़ा अमोनिफिकेशन और एक हमने पढ़ा नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है, मेकिंग ऑफ अमोनिया, और नाइट्रिफिकेशन क्या है, मेकिंग ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन जो बैक्टीरिया कर रहे हैं उसको हम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया करते हैं, और जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं उनको क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। अमोनिया कैसे बनता है कि जब डेड ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिज्म है उनका नाइट्रोजीनियस वेस्ट और उनकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है
डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया जो हैं जब उनको ब्रेक डाउन करते हैं तो वो उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये अमोनिया जो है ये कहाँ आएगा, नाइट्रिफिकेशन के लिए आएगा। और नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कौन कर रहे होंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कर रहे होंगे। अमोनिया को पहले वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं और बाद में नाइट्रीफाइंग से बैक्टीरिया ही इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया इंक्लूड हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ये जो हमने अभी चीज़ पढ़ी थी बेटे, ये प्रोसेस था फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट के। नाइट्रेट किस तरह बन रहे थे, तो दो प्रोसेस थे, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस था और एक कौन सा था, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब क्या इस प्रोसेस में हमारा ये पहला ए था। ए प्रोसेस में क्या हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट, यानी कि नाइट्रेट बन गए हैं। अब ये जो नाइट्रेट बन गए हैं इनका आगे फर्दर क्या बनेगा, इनकी आगे फर्दर असेमिलेशन होगी। नंबर बी प्रोसेस हमारे पास क्या आएगा, असेमिलेशन। व्हाट इज असेमिलेशन, असेमिलेशन क्या है कि जो नाइट्रेट्स अब बन गए हैं वो कहाँ कहाँ यूज होंगे, उनका पर्पस क्या है। The nitrates formed by the above processes are absorbed by plants and utilized for making protein. Animals take nitrogenous compounds from plant. The utilization of nitrate by organism is called assimilation. जो नाइट्रेट्स हमने पढ़ लिए कि जो डेवलप हो गए थे, जो बन गए थे, अब ये नाइट्रेट जो हैं ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे और प्रोटीन्स बनाने में इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, एनिमल्स जो है वो भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स लेंगे। कहाँ से, जो अब प्लांट आपको पता है ना, जो ये प्रोड्यूसर हैं और जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स खाएंगे तो अल्टीमेटली ये सारे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स उनके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट जो हैं वो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि उनका यूज़ कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, असेमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है प्रोसेस वो क्या आ गया, नाइट्रेट्स बन गए, उनकी असेमिलेशन होगी। अब थर्ड जो आपके पास आया वो है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन बेटे वो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है वो दोबारा रिड्यूस होके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये किसके ज़रिए होंगे बेटे, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के ज़रिए होंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस से नाइट्रोजन गैस दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर से दोबारा वही प्रोसेस शुरू होगा और इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। और दिस इज़ नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी मेंशन की गई है, एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड स्टिमुलेटेड बाय वाटर आइगिंग लैक ऑफ एरिएशन एंड अकोमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। टॉप आपको बताया गया कि एक्सेसिव, या हर चीज़ की बेटे एक लिमिट है, एक लिमिट होती है ना। हमने एंजाइम में पढ़ा था टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होना चाहिए, पीएच भी ऑप्टिमम होनी चाहिए, हमारी भी एक कैपेबिलिटी है, हमने कितना ऑक्सीजन लेनी है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करनी है। इसी तरह हर काम, जितने भी काम है, कार्बन साइकिल आपने पढ़ लिया, नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़े हो, तो हर चीज़ की एक लिमिट है, एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। उससे ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, उससे कम हो तो भी प्रॉब्लम है। सेम इज़ द केस अप्लाई हेयर। यहाँ पे क्या है कि अगर डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस जो है एक्सेसिव हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो क्या हो जाती है बेटे, वो रिड्यूस हो जाती है। जाहिर सी बात है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं और वापस अगर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होके ज़्यादा जाना शुरू हो गए हैं तो सॉइल के अंदर तो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बचेंगे नहीं। उससे क्या होगा कि एरिएशन, यानी कि सॉइल की भी कैपेबिलिटी है ना टू रिस्पायर, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, वाटर लॉगिंग टू होल्ड वाटर, ठीक है, वो भी कम हो जाएगी और सॉइल की फर्टिलिटी भी जो है वो इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी। किस वजह से, एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस की वजह से। ये जो मैंने सारा आपको प्रोसेस बेटे अभी पढ़ाया, दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। अब मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल जो है वो ड्रॉ करके बताऊंगी। मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल कोशिश करूंगी कि बहुत इजी ड्रॉ करूं ताकि आप लोगों को समझ आए और आप जो है, अगर आपका इसके ऊपर नोट आता है तो आप इजीली उसको जो है ड्रॉ कर सको। मेरा साइकिल जो मैं बनाऊंगी वो आपकी बुक से शायद मैच ना करे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं इजी साइकिल ड्रॉ करूं। जैसे कि मैंने कार्बन साइकिल भी जो ड्रॉ किया था ना, वो बुक जैसा नहीं था, तो आप लोगों को कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने मेरे वाला साइकिल ही ड्रॉ करना है। जो आपको बेटे ईजी लगता है आप वो ड्रॉ कर लें, लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ईजीएस्ट नाइट्रोजन साइकिल जो है वो ड्रॉ करके दूँ। सबसे पहले हमने अपना नाइट्रोजन साइकिल कहाँ से शुरू किया था, N2 इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन द एटमॉस्फेयर।
हमने यहाँ से अपना साइकिल स्टार्ट करना है, ठीक है। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, ठीक है। ये इसको हम लोग कह लेंगे N2। N2 क्या चीज़ है बेटे? नाइट्रोजन है। दिस N2 इज़ नाइट्रोजन। मैं यहाँ पे N2 लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। फिकेशन। यहाँ पे आपके आएंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। पहले मैं बना लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाएंगे बेटे। यहाँ पे आपका क्या बनेगा? NO3, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे भी नाइट्रिफिकेशन होगी, नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन कौन सा करता है बेटे? ये करेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक। और आपके पास क्या बन जाएगा? NO2। क्लियर? यहाँ पे आपके पास आएगा अमोनिया, NH3। अमोनिया है ना ये ठीक है। यहाँ से आप ऊपर जाओ, यहाँ पे हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक। और ये आपका फिर फिक्सेशन हो रही है। क्लियर? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता है। यहाँ पे कोई भी आप प्लांट ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसकी रूट्स पे जो है आपके ये कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका एक और भी प्रोसेस होना है अभी, विच इज़ अमोनियम आयन भी बनते हैं यहाँ पे, NH4 भी। यहाँ पे आपके डीकम्पोजर्स आएंगे। डीकम्पोजर यहाँ पे कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। सपोज जैसे मैंने पहले ड्रॉ कर लिया था, हमने एक शीप सपोज ड्रॉ कर लो, कोई भी एनिमल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे हम कोई भी अपना प्लांट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है? ये एब्जॉर्प्शन हो रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन N2 इन एनिमल्स है ना बेटे, एनिमल्स, मैंने पहले ये लिख दिया। ठीक हो गया। और ये क्या चीज़ थी? यहाँ पे आपके एक और प्रोसेस भी हो रहा था जिसको हम लोग कह रहे थे असेमिलेशन। ये क्या प्रोसेस हो रहा है? असेमिलेशन, ठीक है। असेमिलेशन यानी कि आपके प्लांट जो हैं वो N2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि जब आप इसको खुद से पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। यहाँ पे एक और चीज़ भी बेटे हमने मेंशन करनी है। अब इसी जगह पे मैं आपको मेंशन उसको भी करके दिखाऊंगी। यहाँ पे ये जो NO2 बन रहा है ना, ये एक और प्रोसेस से भी बन रहा था। ये जो NO3 बन रहा था,
ये प्रोसेस यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ये बादल हैं और ये जो है आपकी रेन हो रही है, रेन और साथ आपके यही सिंबल होते हैं ना थंडरिंग के। थंडरिंग को जब आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना हो ना, ऐसे बनाने हो उसके निशान, तो दिस इज़ थंडरिंग और दिस इज़ आपकी लाइटनिंग। लाइटनिंग एंड थंडरिंग हो रही है। यहाँ पे आप मेंशन कर दो LIGHTNING, लाइटनिंग एंड थंडरिंग। थंडरिंग था ना प्रोसेस, लिख लो, खुद ही लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये बेटे मैंने सारा का सारा जो है ये क्या ड्रॉ किया, मैंने ये ड्रॉ कर दिया नाइट्रोजन साइकिल। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। सेम का सेम वही प्रोसेस हो रहा है। पहले क्या प्रोसेस होता था हमारा, हो रहा था नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है बेटे 3 तरह से हो रही थी। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन है, ये वो नाइट्रोजन है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन होता है। यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, देखो यहाँ पे लाइटनिंग और क्या हो रही थी, थंडरिंग, ठीक है। थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग थी। इसने क्या किया, इसने नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, नाइट्रेट्स में, NO3। ये देखो यहाँ से सारा ये कन्वर्ट, सिंपल कन्वर्ट हो गया। आपके पास क्या आ गया, नाइट्रेट्स आ गए। ये इसकी है, ये डायरेक्ट प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आपके पास क्या बन गए, आपके पास नाइट्रेट्स बन गए। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा था। फिर आपको मैंने बताया था कि प्लांट्स की रूट्स में भी जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा होता है किसमें बेटे, नाइट्रेट्स में, ठीक है। ये बियोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है। फिर आपकी आती थी इंडस्ट्रियल में। इंडस्ट्रियल में क्या होता था कि आपके पास जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या बन जाता था, वो हाइड्रोजन में मिक्सअप होती थी और आपके पास क्या बनता था, अमोनिया। और अमोनिया से फिर नाइट्रेट और नाइट्राइट्स जो हैं वो बनते थे दोनों आपके पास, ठीक है। ये आपने याद रखना है बेटे, नाइट्रेट जो है ना, नाइट्रेट्स दैट इज NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। जो Ni3 एक NO2 होता है, एक NO3 होता है, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। NO2 का मतलब होता है नाइट्राइट्स और NO3 का मतलब क्या होता है, नाइट्रेट्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इनको आपने याद रखना है। फिर हमने एक और चीज़ भी पढ़ ली थी, असेमिलेशन। असेमिलेशन क्या थी कि जो नाइट्रेट बन गए थे, अब देखो ये नाइट्रेट बन गए और क्या हुआ, प्लांट्स ने रूट के जरिए जो है इनको एब्जॉर्ब कर लिया, सॉइल के अंदर से एब्जॉर्ब। असेमिलेशन का प्रोसेस हम पढ़ रहे थे ना, प्लांट्स ने इनको ले लिया और क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब इन प्लांट्स को किसने खाया, हर्बीवोर्स ने खाया। जब प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने लिया तो इसका मतलब है कि जो जितने आपके जो हर्बीवोर्स थे, जो एनिमल्स थे, उनके अंदर भी नाइट्रोजन आ गई। यानी कि एनिमल्स टेक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहाँ से, फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट प्रोसेस आ गया था आपका डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या हो गया था कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट जो हैं ये रिड्यूस हो गए थे, किधर दोबारा, किसके जरिए, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के जरिए दोबारा जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में वापस चले गए थे। ये बेटे सारा हमारा नाइट्रोजन साइकिल है। आपने इसे कंप्लीटली जो है पढ़ना है, इसी तरह आपने साइकिल ड्रॉ करना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बल्कि आपका जो नाइट्रोजन साइकिल है इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके आते हैं। कुछ मैं आपको बताती हूँ, आपने इनको अच्छी तरह करना है। जैसे कि आपके आ सकता है, व्हाट इज ह्यूमन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट इज बियोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर आपके आ सकते हैं, डिफाइन अमोनिफिकेशन, डिफाइन नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, तो आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोसोमोनास जो है ये वो बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और जो नाइट्रोबैक्टर है वो क्या करता है, वो नाइट्रेट, जो आपके नाइट्रेट्स बने थे उनको क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। मैं क्या बात बोल रही हूँ, पहले आपके पास क्या बना था, अमोनिया बना था। अमोनिया क्या था, NH3 था। अमोनिया कैसे बना था, अमोनिया तो इंडस्ट्री में बन गया ना, जब हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन मिक्सअप होता है तो अमोनिया बन जाता है। अब इस अमोनिया को किसने कन्वर्ट किया था, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया था अमोनिया से किसमें, नाइट्राइट्स में। किसमें, नाइट्राइट्स में। और ये नाइट्राइट्स किसमें कन्वर्ट हो गए थे, नाइट्रेट्स में, ठीक है। अमोनिया से जब आपके पास नाइट्रेट बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ,
नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं उसको? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और जो अमोनिया का ब्रेक डाउन है, अमोनिया ब्रेक डाउन होगा ना अमोनिया का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अमोनिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, दो चीज़ें, अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होगा पहले नाइट्राइट्स में, फिर कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। वो बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है ना, उसको क्या कहते हैं बेटे? उसको कहते हैं दोनों को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जो ये काम कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोसोमोनास, उसका नाम है। और फिर आगे बैक्टीरिया जो नाइट्राइट्स को फर्दर नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, उससे क्या कहते हैं? उस बैक्टीरिया का क्या नाम है बेटे? नाइट्रोबैक्टर। तो ये आपने डिफरेंस याद रखने हैं, ये आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो प्रोसेस है, एक है अमोनिफिकेशन और एक है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन ये दो बैक्टीरिया कर रहे हैं, ठीक है। और अमोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजीनियस बेस टू अमोनिया। अमोनिफिकेशन जो अमोनिया बनता है ना, ये इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही बन जाता है और वैसे ब्रेकडाउन से भी बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे नाइट्रोजन आपका साइकिल। अब इसके साथ ही अपना टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये टॉपिक ज़रा थोड़ा सारा लेंथी भी है और ज़रा इसमें नई चीज़ें भी बहुत सारी ऐड ऑन हुई हैं, तो इसको कोशिश करना है कि आज ही आप कंप्लीट करो, इसे कल पे मत छोड़ो, इसको अच्छी तरह से आज लर्न कर लो। इसमें जितनी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन सबको पेपर पे लिखो, उनको खुद से अपना टेस्ट लिखो, डिफाइन करो कि मुझे सारी समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह बेटे ये पूरा भी आ सकता है पेपर में, ठीक है, या सिर्फ साइकिल ड्रॉ करना भी आ सकता है, और इसमें से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी जो हैं वो भी आपके पेपर में आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।